Hello students, once again I am in front of you with one more important chapter of civics. Right? If we talk about in last chapter we have just studied about the Indian Constitution. Right? In Indian Constitution, how is it prepared and what are its compositions and what are the basis on which the Indian Constitution is just prepared. These all things be discussed in last chapter. One of the very important factors or content of Indian Constitution, that is secularism. I think all of you are introduced with the term secularism. What is meaning of secularism? The secularism terms just made from the term secular, means a state or a country be away from any type of religious priority. In the view of the nation or the government, there is not prior importance of religion. Right? Once again, try to understand what is the meaning of secularism. Means the country or the nation or the government will not interfere in any religious issues, will not giving the importance of the religions and special religious groups, or you can say the government or the nation will give the equal respect, equal values, equal honor to every religion. Right? Means the nation or the government will not have any special religion. Right? Now, as definition it is written here, secularism is the view that religion or the religious beliefs should be kept apart from the running state. अगर पिछले चैप्टर का आपको समरी याद होगा तो स्टेट किसे कहते हैं, नेशन क्या होता है, वो आपको क्लियर होगा. स्टेट करने का मतलब है कि अ कंट्री, अ प्लेस जिसका एक अपना सरकार हो, जिसका एक अपना गवर्नमेंट हो, एक पॉपुलेशन हो और अपनी सॉवरेनिटी हो. मीन्स उसके डिसीजन में किसी का इंटरफेयर नहीं हो. अगर ये चारों फैक्टर कोई कंटेन करता है तभी उसको हम स्टेट या नेशन कह सकते हैं. ठीक है. अ कंट्री और अ स्टेट कैन बी कॉल्ड व्हेन हैविंग फोर फैक्टर्स: पॉपुलेशन, पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, एक सरकार और सरकार को डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी, मतलब उसके डिसीजन में किसी का कोई इंटरफेयर ना हो. राइट? अगर ये चारों फैक्टर्स होता है तभी जाकर के वो स्टेट कही जा सकती है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या बिहार एक स्टेट है? डिफरेंट कंट्री, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो एक कंट्री को इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है. लेकिन वो 29 स्टेट्स नहीं है, वो 29 प्रोविनेंस है. स्टेट तभी होगा जब उसके गवर्नमेंट का, उसके डिसीजंस इंडिपेंडेंट होगा. लेकिन यहाँ पे इंडिया एक
नेशन है, इंडिया एक स्टेट है, लेकिन बिहार एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, क्योंकि बिहार की अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, वो इंडिया के सॉवरेनिटी पे काम करती है। इंडिया के डिसीजंस, बिहार के डिसीजंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, उसको रोक लगा सकता है, उसके डिसीजंस को पर इंटरफेयर किया जा सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारा कोई डिसीजन लेता है तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरा कंट्री उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, बिहार एक प्रोविनेंस है, और स्टेट कौन सा है? इंडिया एक स्टेट है। अब यहाँ पे हम लोग डिसीजंस, हम लोग डेफिनेशंस में देखें कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कोई स्टेट या कोई कंट्री और उसकी गवर्नमेंट धर्म से संबंधित इशू से अपने आप को अलग रखे या सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे। ऐसी सिस्टम जिस कंट्री में हो, जिस नेशन में हो, जिस स्टेट में हो, उसको हम सेक्युलर कंट्री कहते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया एवरी religions has equal importance. Government will not promoting to any particular religions. As you know that in India there are different religions are practiced, like Hinduism, like Islam, like Christian, Buddhism, Jainism, right? जो different religious peoples, religious groups are living together here. Means the government or the country will giving the equal respect and equal values to every religion. If there is any religious practice, then in that religious practice the government will not directly interfere it. The government will not directly promote it. The government will give their respect. अपनी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट दे सकती है सभी रिलीजन्स में। अगर हिंदू की होली की छुट्टी होती है तो क्या होता है? क्रिश्चियन की गुड फ्राइडे की भी छुट्टी दी गई है, इस मुसलमान की ईद और बकरीद की भी छुट्टी दी गई है। मीन्स मतलब नेशन जो है और कंट्री जो है वह सभी रिलीजन को इक्वल वैल्यू देती है। तो चूंकि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो आप देखें, आपको मालूम होगा कि जब इंडिया की 1947 में आज़ादी मिली और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग अलग नेशंस के रूप में हुआ, तो उस समय में एक धार्मिक दंगा हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच में। आने वाले टाइम में इंडिया में कोई और धार्मिक बंटवारा ना हो, रिलीजियस डिसइंटीग्रेशंस ना हो, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री का दर्जा दिया गया। इंडिया में एक सेकुलर कंट्री के रूप में इंडिया को एक्सेप्ट किया गया, जहां पर सभी रिलीजन्स के पीपल्स को समान रूप से, इक्वल रूप से रहने का पूरी अधिकार होगा, और गवर्नमेंट किसी भी रूप में किसी भी रिलीजन के पीपल के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करेंगे। मीन्स वाट एवर द पीपल जस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम द हिंदुइज्म, just belonging from the Islam, belonging from the Christians, belonging from the Sikhism, Jainism and Buddhism, everyone are equal in the view or in the eye of the government and nation. Right? So it is written here, secularism is the view that religion or the religious beliefs thinking should be kept apart from running एक जो कंट्री चलती है, कंट्री की रनिंग, कंट्री का जो शासन व्यवस्था चलता है, वो कंट्री का शासन व्यवस्था धर्म और धार्मिक विचारधारा से बिल्कुल क्या होगा? अपने को अलग रखेगा। मतलब सभी धर्म और धार्मिक विचारधारा को समान रिस्पेक्ट देगा। सेकेंड, इन द सेकुलर कंट्री द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स। मतलब जो कंट्री जहाँ पर कि वो सेकुलर होगा, तो सेकुलर कंट्री का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो क्या होता है, कोई भी धार्मिक मामले में क्या होता है, स्टेट माने कंट्री इंटरफेयर नहीं करता है। रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट का और कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। द रिलीजन्स हैज नो इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, हैज नो रोल, right? The religion has no role in the governance of the country. किसी भी धर्म का कंट्री के रनिंग में, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भूमिका नहीं होती है। रिलीजियस इश्यूज पर थिंकिंग करते हुए सरकार कोई भी अपने कार्यकलाप को
संपादित नहीं करती है। गवर्नमेंट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटीज बाय थिंकिंग ऑफ द रिलीजियस, बाय कंसिडरिंग द रिलीजियस इशू। धर्म से राष्ट्र अपने को अलग रखते हुए, सभी धर्म को बराबर वैल्यू देते हुए, ठीक है, वो इशूज को मतलब कार्य को अपनी संपादित करती है। कहता है सेक्युलरिज्म इज नॉट प्रैक्टिस्ड द सेम वे इन ऑल कंट्रीज दैट आर सेक्युलर। नोट, अब यहाँ पर देखा जाए, ये बहुत कॉमन लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आज दुनिया के जितने भी मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, तो सभी मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने आप को सेकुलर कंट्रीज कहते हैं, ठीक। लेकिन सेकुलरिज्म अगर इंडिया में धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में डिफरेंट रिलीजन है, तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में केवल इस्लाम है, लेकिन वहाँ पर शिया और सुन्नी है। अगर हम अमेरिका की बात करें और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ तो केवल क्रिश्चियन रिलीजन है, लेकिन एक क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। कहने का मतलब धर्म को प्रैक्टिस करने का अलग अलग तरीके अलग अलग कंट्रीज में है। तो अलग अलग तरह से सेक्युलरिज्म इंजॉय किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन सभी कंट्रीज में जो भी सेकुलर है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये लाइन को अच्छी तरह से समझें। इन डिफरेंट कंट्रीज देयर आर डिफरेंट ways to practice religion, but there are few basic elements of every secular countries। अलग अलग कंट्रीज में सेकुलरिज्म को सेलिब्रेट करने का, प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग जरूर होता है, लेकिन सेकुलरिज्म का कुछ बेसिक एलिमेंट्स कॉमन होता है। जो भी कंट्री अपने आप को सेकुलर कहती है उस वहाँ पे वो बेसिक एलिमेंट्स को फॉलो किया जाता है। एक्चुअली हैविंग सम बेसिक एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल सेकुलर कंट्री, दिस इज रिटन हियर कि जो भी सेकुलर कंट्रीज है वो सेकुलर कंट्रीज के कुछ बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। कहता द स्टेट country neither favors any particular religion nor discriminates against any religion। जो कंट्री सेकुलर होता है वो कंट्री न किसी एक धर्म को वो प्रमोट करेगा, ना ही किसी दूसरे धर्म को क्या करेगा, उसको लो समझेगा। सभी धर्म को क्या समझेगा, सभी धर्म उसके लिए समान होगा। अभी हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि हिंदू हो या अगर लीव देने की बात होती है तो हिंदू के फेस्टिवल के साथ साथ इस्लाम मुस्लिम के भी फेस्टिवल में, क्रिश्चियन के भी फेस्टिवल में, बुद्ध और जैन के भी फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस देते हुए सभी पे लीव दिया जाता है। इट मीन्स व्हाट कि गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस देती है। कहता है मतलब धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर गवर्नमेंट और स्टेट और द नेशन जो है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। अब कहने का मतलब क्या, अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है, कोई बहाली निकलता है, कोई अपॉइंटमेंट निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू का है तो हिंदू को पोजीशन पहले दिया जाएगा। अब अभी आप 9th क्लास और 10th क्लास में, जब 10th क्लास में आप जाओगे तो हम आपको श्रीलंका के बारे में बताएंगे। आप वहाँ पर देखोगे कि कैसे एक खास लैंग्वेज बोलने वाले सिनलाज पीपल्स जो थे उनको गवर्नमेंट की नौकरी में उनको प्रमोट किया जाता था, ठीक है, जिसके कारण से श्रीलंका में डिसइंटीग्रेशन की कंडीशंस क्रिएट हो गई, श्रीलंका का बंटवारा होने का कंडीशन हो गया और श्रीलंका में अभी भी सिविल वार चल रहा है। अब तमिल एलम का नाम जो सुने हो, तमिल एलम जो अलग तमिल राज्य का जो डिमांड करता है श्रीलंका में, वो लैंग्वेज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशंस किया गया इस कारण से हुआ, ठीक है। तो इंडिया में कोई भी जो सेकुलर कंट्रीज है वो सेकुलर कंट्रीज जो में किसी भी रिलीजन के बेसिस पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज द आइडियल कंडीशंस, दिस शुड बी द आइडियल कंडीशन फॉर अ सेकुलर नेशन और सेकुलर स्टेट। बताया द गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एंड रिलीजियस ग्रुप। सरकार जो होती है किसी खास धर्म को न कोई खास न प्रमोट कर सकती है, न किसी रिलीजियस ग्रुप को
को प्रमोट कर सकती है, सभी धर्म को इक्वल वैल्यूज देती है, और गवर्नमेंट जितना हो सके अपने आप को रिलीजियस इशूज से क्या करे, दूर रखती है। जो सेकुलर नेशन है वो किसी भी रिलीजियस और रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप से अपने आप को क्या होती है, सेपरेसी, एक डिस्टेंस मेंटेन करती है। कहता है लास्टली रिलीजन इज एन इंटायरली पर्सनल अफेयर। अगर देखा जाए तो रिलीजन सेकुलर कंट्रीज में रिलीजन जो है किसी ग्रुप का या किसी व्यक्ति का पर्सनल अफेयर है, पर्सनल इशूज है, गवर्नमेंट का माने कॉमन नेशन वाइड इशूज नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट का वहाँ पर इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट का सपोर्ट वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। if there is establishment of ideal situation of secularism, right? कहता है no one can do anything which is unlawful or which harms others or the state. अब कहता है धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रुप को कानून के विसंगत रूप से वर्क नहीं करना चाहिए। अपने धर्म के प्रमोट करने के नाम पर हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं या दूसरे व्यक्ति को हम क्या करें, उसको हार्म पहुंचाए, ये सही सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में होगा। इसलिए आप देखते हो कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी जब होता है तो गवर्नमेंट जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर जो होती है, पुलिस सिस्टम जो होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वहाँ पर काफ़ी क्या होता है, एक्टिव होता है, वह ड्यूटीज में होते हैं, जिससे कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेज से किसी दूसरे व्यक्ति को या सरकारी संपत्ति को क्या हो, किसी तरह का हार्म नहीं पहुँचे। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म के प्रमोशन के नाम पर, धर्म के प्रमोशन के नाम पर किसी दूसरे पीपल्स या दूसरे ग्रुप को के साथ अनजस्टिस करता है, के साथ गलत करता है, तो ये सही रूप का सेक्युलरिज्म नहीं है। इसका मतलब दिस इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नाउ वेरी क्लियर, यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब आप एक लाइन में समझे कि एक राष्ट्र और एक नेशन जो अपने आप को धर्म से अलग रखता हो और सभी धर्म को समान रिस्पेक्ट देता हो, ऐसे नेशन को सेक्युलर नेशन कहते हैं। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक सेक्युलर नेशंस का दर्जा दिया गया है, जो कि आपको जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम प्रियम्बल्स आपको बता रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और इस चैप्टर का और डिटेल्स में हम लोग सेक्युलरिज्म को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।